What happened 8 days ago is one of the most horrific atrocities ever made in history of my people. What is the most important thing that you can do, and what we must do right now is bring the hostages back. This is what every nation on planet Earth should intervene. Not just Israelis, not just Jewish people. They're holding people from 36 countries from around the world. I'll do everything in my power to have Israel win. I feel grateful to have an ally, a beautiful ally like India. India is one of my favorite places on earth. I love its people. हमारी कौम तो यहूदियों के एजेंट है हम सारे। हम क्या कहेंगे फलस्तीन को? ठीक है, नहीं मैं तो नहीं हूँ एजेंट, सारे ही हैं। आप हैं भाई हम हमारी आप हैं। देखिए हमारे अननोन बंदे हैं ना। आपने क्या? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना। आपके अननोन समझ आ गई ना आपको? अननोन है ना सारे, बस उन्होंने हमें भी बना दी है। हम भी यही कहेंगे ना, जब हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारा कोई फ्रीडम ही नहीं है, तो क्या करें? और लेट्स सपोज बोल भी लेते हैं, जो इस समय हमारी हालत है, हमारी आवाज कौन सुनेगा? क्या है? हमारे पास बम है, हमने किसको अपने बम किसको मारने हैं? अपने लिए रखे हैं, लगता है हमने बम इंडिया के लिए नहीं रखे हुए। हमने बम अपने लिए रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बम वाली बात करनी नहीं चाहिए। आज तो इकोनॉमी का दौर है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम अगर वार की तरफ या बम की तरफ, इकोनॉमिकली आप तो ऊपर जाए। आप किससे क्या फाइट कर रहे हैं? आप इंडिया आज खड़ा हो जाए, आप क्या कर सकते हैं उसके आगे? वो चांद पे पहुंच गया है। आप अभी तक नवाज शरीफ आ रहा है जी, जा रहा है जी। यहाँ पे ना हर पाकिस्तानी को ना आप इजाजत दें ना कि यार ये फलस्तीन बॉर्डर खुले हैं, जाओ। तो लोग वैसे इलीगल डंकी लगा के चले जाते हैं, तो अभी चले। मैं कहता हूँ कल उधर नमाज पढ़ते हो ना सबने, ठीक है? कहने के बाद आप जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन क्या अभी मेरी बात एक मिनट यार सुन ले मेरी बात। साथ हमारे मैं कहता हूँ दुश्मन मुल्क बैठा हुआ है हमारे, हम मुल्क छोड़ के जाएंगे तो हमारे ऊपर किसने देगा? भाई हमारे माइंड से दुश्मन नहीं समझता। जो बात में हम दुश्मन इंडिया अब मुकाबला करता है आईटी में, इंडिया मुकाबला करता है जनाब चाइना के साथ, रशिया के साथ। उसका वो मुकाबला ही नहीं करता। वो मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं करते। Of course, I was in India 5 times. So they're very close. Both the leader, head of the states are very close, and the way India has condemned the terrorist attack in Israel. What's your message to the Indian and countrymen, to the Indian people? I feel grateful to have an ally, a beautiful ally like India. India is one of my favorite places on earth. I love its people. I can really understand why the first thing that you guys did was to condemn the horrible action of October 7th in Israel. I would expect nothing less, but I want to say with the utmost gratefulness in my heart, I think it's the best thing that you guys can do for us, is condemn this horrible terror and stand by our side. Do you think any religions can speak or teach bloodbath the way they are doing Gaza Strip, Hamas people on the name of Islam? Can you repeat the question? Do you give the advice to do bloodbath? The Hamas terrorist has taken and has done barbaric attack on Israeli people. The question you're asking, if there's any religion that can teach against the humanity to do a terrorism against the people like Hamas. You know what I think? I think if you look at religion I think religion is a beautiful thing if you make it beautiful. I think it's a human choice to use religion for the best way. I think whoever lost sight of their human spark inside of them can use religion in a very, very bad way. But I think what was shown to us on October 7th, 2023, is that Hamas is ISIS and they will not stop. Israeli forces are fighting at the border with the Hamas terrorists. Every Israeli wants to kill Hamas terrorists. If required, will you take the gun and go to the border for the country? I will do everything in my power to have Israel win. Everything. शुरू से हक में रहा यार। देखें 75 साल से गुलामी, ठीक है,
और मैं कहता हूँ क्या क्या नहीं जुल्म हुए उनके ऊपर। अच्छा भुगतना तो था ना, ठीक कभी है। ना कभी तो भाई देखें ईमान का ऐसा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो आखिरी जो जंग है ना हाँ। वो इसी के ऊपर होनी है। तो ये फाइनल इसका वार आखिरी ये इसका है। मतलब ये है कि जंग स्टार्ट हो गई, वो आखिरी नहीं जंग भाई दुनिया की स्टार्ट हो देखें चुकी है। आखिरी जंग जो है वो तो अभी बहुत है, हाँ। ठीक है। अभी तो बड़ी क़यामत की निशानियां जो है ना वो आएंगी, फिर ये जाकर काम अच्छा होगा। अगर सही। हम बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीज़ नज़र आ रही है, जिस तरीके से इसराइल और हमास की या फ़लस्तीन की, हमास की नहीं फ़लस्तीन की बात करें, इंडिया जो है बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है ख़ास तौर पे, तो आपको लगता है कि करना चाहिए इंडिया को पॉजिटिव रोल प्ले? और जैसे देखें इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन, सऊदीया के साथ कैसे रिलेशन, ईरान के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ, ऐसे ही इसराइल के साथ तो वो खड़ा है। तो क्या कहते हैं अगर वो रिलेशन बेहतर करना चाहे? रिलेशन देखे ना, वो कहते हैं पंजाबी ने मिसालें मज्जा मज्जा ने पैना होंदियां ने एक काफर सारे जो उनसे जितने भी ना ये अपने मफादात में एक हैं मुसलमान। मैं तो फिर रशिया वाले मुसलमान हैं जो वो हमास के साथ रशिया की मैं एक और बात बता दूं, रशिया इस टाइम 57% मुस्लिम ममालिक और आने वाले 20 साल में वो एक मुस्लिम स्टेट तस्वर हो सकती है। अच्छा तो ऐसे तो 40 करोड़ मुसलमान इंडिया में भी इंडिया में, लेकिन स्टेट तो नहीं ना, हाँ, नहीं ये नहीं स्टेट नहीं है। Basically लेकिन ना, इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि ना इंडिया की देखें हाँ। ना, हाँ पाकिस्तान को एक मुस्बत आवाज़ उठानी चाहिए। लास्ट टाइम इन्होंने ये पॉजिटिव रोल पॉजिटिव करना चाहिए, ये एक इस्लामी वो तामन ममालिक की कॉन्फ्रेंस होती है, वो नाम निहाद होती है ना, OIC किधर बैठी हुई है अभी? इनको भी यकजा होना चाहिए, बैठना चाहिए, प्रॉपर इनको धमकी देनी चाहिए कि अगर हम आए हैं आपकी सालिस के लिए, अगर आप इधर से भी कोई हमला हुआ या उधर से हुआ, ठीक है। दोनों खुद भुगतेंगे, बजाय आप हम जंग बीच के- में नहीं आएंगे अगर किसी ने जंग ना रोकी तो अगर बीच में। आप जंग बंदी चाहते हैं, इस टेबल टॉक करें, इस जगह पे आए, आके काम खत्म करें। ठीक है, आप लास्ट में क्या बेसिकली कहना ना चाहेंगे? देखें, आपने अब बात की कि जी वो तो मुसलमान नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो मुसलमान नहीं है, फलस्तीन के हवाले से आप भी बोलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ठीक मैं है। नवाज शरीफ के आने पे भी बोलूंगा हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत नहीं, फरदौस में हम जगह इस दे। टाइम नवाज शरीफ के हवाले यार, कैसे मैं नहीं तो बात करूंगा कर रहे? ना, मैं तो अच्छा। करूंगा ना हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ठीक है। ये कोई सियासत है? एक तरफा सियासत है जी, बिरयानी खिला दो, 1 to 5 दे दो, ये कहाँ की सियासत है यार? ठीक है, फलस्तीन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेगी? हमारी कौम तो यहूदियों के एजेंट है हम सारे, हम क्या कहेंगे फलस्तीन को? ठीक है, नहीं मैं तो नहीं हूँ एजेंट, सारे ही हैं आप हैं भाई। हम हमारी आप हैं देखिए हमारे अननोन बंदे हैं ना, नहीं, आपने कैसे? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपके अननोन समझ आ गई ना आपको? मैं समझ अननोन है ना सारे, ठीक है। बस उन्होंने हमें भी बना दी है। ठीक हम है। भी यही कहेंगे ना, नहीं, जब हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारा कोई फ्रीडम ही नहीं है, हाँ। तो क्या करें? और लेट्स सपोज बोल भी लेते हैं, जो इस टाइम हमारी हालत है, हमारी बात हम कौन क्या सुनेगा? हाँ क्या है? ये चीज़। हमारे पास बम है, हमने किसको अपने बम किसको मारने हैं? अपने लिए रखे हैं, लगता है हमने ऐसे ही बम है। और इंडिया के लिए नहीं रखे हुए, हमने बम अपने लिए रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बम वाली बात करनी नहीं चाहिए। आज तो इकोनॉमी का दौर है, टेक्नोलॉजी के मतलब ये है कि हम अगर वार की तरफ या बम की तरफ, वो इकोनॉमिकली तो आप तो ऊपर जाए हैं, आप चीज़। किससे क्या फाइट कर रहे हैं? आप यही इंडिया आज खड़ा हो जाए, आप क्या कर सकते हैं उसके आगे? वो चांद पे पहुंच गया है। यही आप अभी तक नवाज शरीफ आ रहा है जी, जा रहा है जी, हम मल्ट्रा मिल रही है, में बैठे मरियम नवाज हमजा शरीफ के हाथ पकड़ रही है, बाजू पकड़ रही है, जो उसने 10 सालों में कभी नहीं पकड़े, वो आज उसके बाजू पकड़ रही है। आज हो जी, देखें जी, लॉजिकली बात करें, बेशक गुस्से में वो बात करेंगे, हमारी आवाज उठाने का इसका मकसद क्या? बहुत शुक्रिया भाई आपकी, आप थोड़ा लेकिन गुस्सा कम करें। गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं दिल से अफसोस है। हाँ, हम देखो, आप पाकिस्तान छोड़ दो, हम मुसलमान तो है ना, ऐसे ही है। उधर मुसलमान मर रहा है, हमारा अननोन जो हाइड है अननोन का, वो क्या कर रहा है? ऐसे ये चीज है, देखें इसके ऊपर हमें बोलने की जरूरत है भाईजान। ये देखें लोग जो से गुस्से में हैं, लॉजिकल बात अपने तौर पे करते सर हैं। बात अलग है। देखें अब यहाँ पे ना हर पाकिस्तानी को ना आप इजाजत दें ना हाँ। कि यार ये फलस्तीन बॉर्डर खुले हैं, ठीक है, जाओ। तो लोग ठीक है। वैसे इलीगल डंकी लगा के मैं चल जाते हैं, कहता तो हूँ- अभी चले मैं कहता हूँ कल उधर नमाज पढ़ते हो ना सबने, भाई नहीं, ठीक ये है, सब लेकिन कहने के बात- आप जाएंगे, आप जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन जाएंगे, क्या जरूर है? जाएंगे, लेकिन लेकिन क्या कल- है, भाई, अभी मेरी एक बात मिनट, एक कल मिनट यार एक सुन मिनट, ले मेरी एक बात मिनट। ठीक है। बात अलग है। बात ये है कि ये हमारा काम अभी जो है ना, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, ये हमारा काम नहीं अभी, ये जबरदस्त हमारे लीडर्स का काम है, जिसके पास अदारों हुकूमत का, होती है ना, बिल्कुल। वही काम करता है भाई। रियाया ही उठ के करेगी काम, तो फिर उन्होंने क्या करना फिर है? तो कुछ इधर भी नहीं इधर करेंगे। भी माहौल खराब, इधर आपस है में ना? जंग शुरू हो जाएगी। साथ हमारे हो गया। मैं कहता हूँ दुश्मन मुल्क बैठा हुआ है हमारे, हम मुल्क छोड़ के जाएंगे तो हमारे ऊपर किसने दुश्मन देखेगा? देखें, भाई हमारे माइंड से दुश्मन हमें दुश्मन नहीं समझता। हाँ, जो बात इंडिया में हर बात में हम दुश्मन ले रहे हैं। इंडिया अब मुकाबला करता है IT में, इंडिया मुकाबला करता है जनाब चाइना के साथ, ही रशिया के साथ, उसका पाकिस्तान को वो वो- मुकाबला ही नहीं करता। वो मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देख रहा था,
वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं करते उसकी। वो उनका ये कहना कि वो तो ये अपनी गुर्बत से नहीं निकल रहे, अपने मामला से ही नहीं निकल रहे। जब से माशाल्लाह मुशर्रफ के बाद सियासी चलें, ये तो टॉपिक है ना, ये दूसरी तरफ आ गए हम, ठीक है। बेसिकली हमने बात वही की थी, वो जो भाई मैं छोटी सी बात करके हम जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बेसिकली देखें यार, देखें वहाँ पे मुसलमान मर रहे हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुसलमान इंसान, मैं कहता हूँ इंसान की बात चलें, इंसान, मैं आपको इस पे भी हदीस बताता हूँ कि देखें मुसलमान के लिए भी सुने, देखें इस्लाम में ये चीज है, इस्लाम में ये चीज है कि एक इंसान की जान वो है जो गैर मुस्लिम है। अच्छा हाँ, इंसान वो है जिधर मुस्लिम कोई भी नहीं लिबरल। भाई भैया बात सुने, नहीं मैं बताता हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ रहा हूँ, उनके मुताबिक इंसान वो है जो मुसलमान नहीं। हमने तो अपने मुताबिक बात करनी है ना कि भाई इंसान की जान जानी चाहिए। खैर अच्छा लगा बात करके, और इनकी भी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई, जो इधर भाई मौजूद थे उनकी भी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फिजान। और आपका नाम? हसीब। क्या करते हैं आप? हम शॉप है हमारी अपनी गार्ड में। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं टॉपिक ये है हमास और इसराइल की जंग चल रही है, ये तो हर एक को पता है। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, पहले उन्होंने ओपनली बोला कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, जैसे ही जंग स्टार्ट हुई उन्होंने बोला, अभी भी वो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन फ़लस्तीन में, गज़ा में अगर बात करें, जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उसके ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है जो फ़लस्तीन के लीडर हैं उन्हें, और अफसोस का इजहार किया कि भाई जो बेगुनाह लोगों की, जो सिविलियन की जानें जा रही हैं उस पर हमें अफसोस है। क्या समझते हैं, मुझे ये बताएं, दुनिया का कौन सा कंट्री है इस टाइम जो ये जंग को रुकवा सकता है, और क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर सबसे पहले जो है इस्लामी इत्तेहाद है, जो हमारे 57 कंट्रीज़ का जो OIC वो रुकवा सकता है, और कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। और उसके ऊपर 57 जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो इसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करना चाहिए, फ्रंट पे आकर लीड करके उसको बताना चाहिए कि यार आप ये बंद करें, नारे मारने से कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे वो फजलुर रहमान को देख लें, वो फ़लस्तीनियों से कह रहे हैं कि आपकी मेहरबानी उधर बमबारी ना करें। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे इनकी सोच क्या है, ठीक है। तो अच्छा, आपने बोला OIC ये जंग को रुकवा सकता है या ये मामला बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, लेकिन OIC के जो मेंबर हैं, ईरान की अगर बात करें, तुर्की की अगर बात करें, सऊदीया की बात करें, कतर की बात करें, ईरान तो ये कहता नज़र आ रहा है कि हम जो है अटैक करेंगे। वो जंग रोकने की बजाय जंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो तो वही मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि जंग रुकनी तब ही है जब काउंटर अटैक होगा। अच्छा, जब काउंटर अटैक होगा तब ये जंग रुकेगी। आप क्या समझते हैं, मतलब ये भाई की बात से एग्री करते हैं इन्होंने, क्या जब काउंटर अटैक होगा तब जंग रुकेगी? इधर से कोई काउंटर अटैक करेगा, उधर से फिर दोबारा अटैक होगा, ये जंग रुकेगी या जंग बढ़ेगी? सर जंग तो ये नहीं रुकेगी, ना ही रुकनी चाहिए। अब इनका ये फैसला हो जाना चाहिए, इसराइल को ख़त्म होना चाहिए। अब ये मुसलमान मुतहिद हों और उन पर प्रॉपर अटैक किया जाए, ठीक है, और इसराइल का खात्मा किया जाए यहूदियों। अच्छा, आपने बोला जंग ना रुकेगी और ना ही रुकनी चाहिए, बड़ा मतलब हैरान करने वाली आपकी स्टेटमेंट है, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने बोला इसराइल का खात्मा हो, इसराइल के खात्मे के चक्कर में अगर दूसरी साइड पे खात्मा हो गया तो फिर हम क्या करें? तो वो तो मुसलमानों का खात्मा काफ़ी टाइम से हो रहा है ना। आप कश्मीर में देखें कितना मुसलमान मर गया, जंग अभी भी वैसे की वैसे ही है, और फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है। अच्छा, कश्मीर में और फ़लस्तीन में आपको क्या कि मतलब यह है कि अक्सर जब फ़लस्तीन की बात की जाती है तो लोग कश्मीर को भी बीच में ऐड करते हैं। आपको लगता है कि कश्मीर में इस तरह की कोई सिचुएशन है? आपको लगता है कि कश्मीर में इस तरीके से कोई मिसाइल फेंके जा रहे हैं? क्या कहेंगे? कश्मीर में भी ऐसे ही है ना, यहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है और वहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। और जो ये मकसद के जो प्लेसेस वगैरह हैं ये बड़ी मुकद्दस हैं, इस वजह से इसको ज़्यादा ज़रा इशू बनाया जा रहा है। वो तो कश्मीर को तो भूल बैठे हैं। अच्छा, कश्मीर को, लेकिन आप कभी आपके अगर मौका मिला आपको किसी कश्मीरी से बात करने का, जो इंडिया साइड कश्मीर है जिसमें हम कहते हैं जुल्म जुल्म जुल्म, उनसे पूछिएगा कि वहाँ पे इस टाइम पे क्या सिचुएशन है और हमारे साइड कश्मीर में क्या सिचुएशन है, तो बहुत सी रियलिटी सामने आएगी। आपका पिज़्ज़ा आ चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लास्ट